بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ابھی ہمارے یہاں 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور ان تینوں کے لیے ایک محفل منعقد کی گئی تھی اور اس موقع پر سب لوگ شریک ہوئے، ان بچوں کے رشتہ دار. تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ان لوگوں کی گفتگو آپ لوگوں کو بھی سنائے. اسی غرض سے یہاں پر ہم ان لوگوں کو بیٹھائے ہیں. ہمارے یہاں جو بچے سب حافظ ہوئے ہیں، یہ امان اللہ، حافظ امان اللہ اب ان کو کہا جائے گا، اور یہ بسیٹھا کے نواسہ ہیں. یہاں پر ان کے نانا موجود ہیں، جناب مرتضیٰ صاحب. تو یہ ہمارے یہاں پر یہ مرتضیٰ صاحب ہیں جو موجود ہے، بچے کے نانا ہیں. اور یہ ہمارے یہاں ایک نعیم ڈیلر صاحب تھے مرحوم، ان کے نواسی کے لڑکا ہو گئے. تو ان لوگ خاندان میں ماشاءاللہ سب اچھے لوگ تھے اور حافظ بھی رہے ہیں. تو اور مسجد مدرسہ یہ سب میں بھی بہت پیش رہتے تھے، عوام کی خدمت کے لیے بھی. تو ان کے گھرانے میں ماشاءاللہ یہ حافظ ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہت سارے کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے. اور یہاں پر اس بچے کا ایک نانیال ہے، تو ان کے نانا بھی آتے تھے موقع سے، کبھی چھٹی دلانے کے لیے، کبھی ناشتہ پہنچانے کے لیے، کوئی بھی موقع ہوتا. تو ہم نے سوچا کہ ابھی یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی کچھ سنیں. یہ جو آپ کا نواسہ ہے امان اللہ حافظ ہوا ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ بہت بتائیے کچھ. بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. جی ہاں، بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا، ابھی تک کوئی نواسے اور پوتے میں کوئی حافظ ہوا ہے یا پہلا ہے یہ؟ نہیں، ابھی پہلا ہے. یہ پہلا نواسہ ہے جو پہلا نواسا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ پہلا نواسہ ہے. اور آپ کے بھائیوں میں بھی کسی کا نواسہ پوتا میں کوئی حافظ ہوا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا. کسی کا نہیں ہوا. کسی کا نہیں ہوا. یہ میرا پہلا ناتی ہے. یہ پہلا ناتی ہے جو پہلا ناتی ہے. دوسرا ہونے والا تو آگے سال ہوگا. وہ دوسری جگہ پڑھ رہا ہے. یہ پہلا ناتی ہے. پہلا ناتی ہے جو حافظ ہوا ہے. تو ماشاءاللہ یہ لوگ ہیں. اور اسی طرح بھی یہاں پر ہے یہ محمد چاند ہے، یہ بھی بسیٹھے کی کا یہ پوتا ہو گیا. یہ حدیث صاحب ہیں، ہمارے یہاں پر یہ موجود ہیں. اور یہ بسیٹھا میں ہم لوگ بچے ہی سے ان کی بڑی کچری بہت مزے سے کھاتے تھے. ہم کو یاد ہے، اب تو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیے ہیں بڑی کو، کوالٹی میں بہت زبردست بڑی بنتی تھی اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے. ہاں، ویسا بیسن بھی نہیں ملتا ہے اور نہ ویسا تیل رہتا ہے پہلے کی طرح، اس لیے وہ سب تھوڑا جو ہے. تو ہم لوگ یاد ہے اثر بعد نکلتے تھے اور خوب بھیڑ رہتی تھی. ایک ہی مرتبہ میں 50 بڑی جو ہے کڑاہی میں رکھتے تھے اور تیار کر. ابھی بھی صبح شام ان کے یہاں چائے پینے کی محفل لگتی ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائے پینے کی محفل دادا سجاتے تھے اور پوتا جو ہے قرآن کی محفل سجائیں گے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آپ 30 35 50 لوگ صبح شام آتے ہیں چائے پینے کے لیے. یہ آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. آپ کا پوتا قرآن پڑھنے والوں کی محفل ہوگی. ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ کہیں پڑھائے گا. 30 35 بچے ہر وقت ان کے درجے میں حافظ ہونے والے بچے رہیں گے. قرآن کی ہر وقت آواز ان کی زبان سے پڑھنا پڑھانا. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، سب سے خوش قسمت انسان ہے اور سب سے بہتر انسان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب کوئی ہزاروں باتیں بھی کر لے گا کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا یہ پوتا ماشاءاللہ حافظ ہوا ہے. آپ کتنے خوش ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے کتنا پریشانی ہوئی، کیسے حافظ بنا؟ بہت خوش ہے. بہت پریشانی ہو کر کے پڑھا ہے بچہ، لیکن پڑھا ہے، محنت کیا ہے. تو بھاگا ہے یہ ہزاروں مطلب بھاگنے کا تو بہت بھاگا ہے. ایک مرتبہ بھاگ کے کہیں باہر بھی گیا تھا پڑھنے؟ نہیں، باہر تو ابا کے ساتھ میں لے گیا تھا، لیکن وہاں بھی صحیح سے نہیں پڑھا. تو پھر ابا لا کر کے رکھ دیا یہاں. تو بہت محنت سے بہت پڑھایا، محنت کر کے پورا شروع سے یہی پڑھا ہے. شروع پڑھا سے یہی پڑھا ہے. اور یہ اور چھوٹا والا ہے وہ بھی حفظ کر رہا ہے. وہ بھی ہچ کر رہا. اللہ چاہے گا تو پڑھتا. آپ کو تو ایک پوتا ہاتھ پکڑے گا، ایک پوتا ٹانگ پکڑے گا، زبردستی لے جائے گا.
ले जाएगा जो जैसा करेगा वैसा तो पाएगा। एक नहीं बल्कि आपके दो दो हाफिज बन जाएंगे, अल्लाह चाहे खुशी की बात है। अल्लाह ये करे कि दो पोते भी हमारा पढ़ के ये हो गया। हाँ माशाल्लाह, चलिए अल्लाह का फजल है, बहुत खुशी की बात है। तो इनके अब्बू कहाँ हैं? इनके अब्बू नहीं आए हैं? आएंगे 20 तारीख तक वो भी आ अच्छा, जाए। जलसा में आएंगे, जलसा में आएंगे। हाँ वो हमको बोले क्या बनना कि हम कल नहा करके हम जा रहे हैं। माशाल्लाह, का शादी के लिए 1-1.5 महीना हो गया, इसके लिए बहुत तो इसी लेकर के थोड़ा देर से बोले कि हम 20 तारीख तक हम आ जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह ये जो अमानुल्लाह है, हाफिज अमानुल्लाह, इसके दादा हैं, वो दादा भी मौजूद है यहाँ पर। आजकल लोग सोचते हैं, आदमी महरूम हो जाता है कि हमारा बेटा हाफिज नहीं बन पाया, तो कम से कम हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा पोता ही कोई हाफिज बन जाए। और किसी किसी को अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं होता है कि पोता नहीं है या पोता है तो बड़ा हो गया है। आप मालूम है कि वो ख्वाहिश दिल में है, बेचारा शौक दिल में रखे हुआ है कि हमारा कोई हाफिज बन जाता हमारे खानदान में, तो ताकि हमको जन्नत में ले जाना और बन जाए। तो अल्लाह ताला ने आपकी खुशकिस्मती रही कि आपके तो बेटा भी हाफिज हुए और आपके पोता भी हाफिज हो गए। बहुत खुशी की बात है। कैसे ये आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, इनके बारे में। बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी कर दी। ये आपके सबसे बड़े लड़के हैं ये? कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो ये हाफिज रहमतुल्लाह साहब हो गए। एक और कौन है? छोटा है, उसे सब्जी भी करता है। अच्छा, छोटा है, खेती अच्छा करता अच्छा अच्छा। तो ये पहला पोता हाफिज बना है? हाँ पहले कोई बना है इससे पहले? नहीं, आप जो लड़के कोई नाती उती में, नहीं, नवास में भी नहीं कोई बना है, और न पोते में कोई बना है, ये पहला बना है। पहला बना। तो बहुत खुशी होगी आपको? बहुत खुशी है। माशाल्लाह, आपके बेटा भी हो गए, जन्नत में ले जाने वाले बन गए, और इधर जो है पोते भी हो गए। तो आपको जन्नत में ले जाने वाले अब उठा करके ले जाएंगे, एकदम खींच करके। इतने सारे लोग होते हैं। तो बहुत मेहनत कर गया, बहुत नहीं तो भागा होगा, नहीं है, कम भागा है ना? घर पर रह जाता है, यहाँ पर जाते घरे पर रहता, भागता नहीं, घरे पर रह जाता है कहीं हुआ तो भाग जाता। ये नखरा बहुत करता था, बीच में कभी कहता था, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। बहुत ककरा पुला उला कर। लेकिन मेहनत करने का शौक इसके अंदर हुआ है ना। घर में सही से रहता है ना? ना घर में सही से मौलाना भी बनाना है ना? हाँ तो सब तो ये है, बच्चे सब है। अभी देखते ही देखते ये हाफिज बना है। अभी हमारे नजरों के सामने झलक रहा है कि ये बच्चा आया था और इस तरह नखरा होता था, और 5 पारे 7 पारे लग रहा था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। इनके अब्बू भी थोड़ा परेशान रहते थे यहाँ का निजाम, लेकिन देखते ही देखते अल्लाह ताला ने इसको हाफिज कुरान बना दिया। अब जाहिर सी बात है, जिसको अल्लाह ताला चाह ले तो उसके लिए सारी मंजिल आसान हो जाती है। तो ये है, तो हाफिज बन गए। कितने दिन में हाफिज बने? 2 साल में? 3 साल में? कितना के सबक सुनाते थे अभी आखिर में? 3-4 सफ़े। अच्छा, आमुख्ता आधा पारा सुनाते थे। अच्छा, थोड़ा सा सुनाओ, कोई सूरह फातिहा सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। माशाल्लाह, ये सब हुफाज कराम हैं। हमने सोचा कि इन लोगों से भी 2-4 बात पूछें। तो ये है अबू रेहान, जो सहर घाट इनका मकान है। तो कैसे यहाँ हाफिज बने, कैसा लगा? पहले आप पढ़ रहे थे किसी दूसरे मदरसे में, यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी, कुछ बताइए। यहाँ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जब मैं इस मदरसे में आया तो मैंने एक चीज देखी कि वहाँ पे छोटे छोटे बहुत बच्चे थे कि छोटी छोटी उम्र में, कम ही उम्र में हाफिज बन गए थे, ठीक है। और वहाँ पे देखे दाढ़ी वाले बच्चा सब हो गए, लेकिन हाफिज अब तक नहीं बना था। ये यहाँ के मुझे देख के निज़ाम बहुत अच्छा लगा। और देखा, और ये महीना मुसाबका होता था, इस दौरान बैठक भी सुना देता था। वहाँ पे 1 साल 2 साल किस तरह का होता है, कैसे मुसाबका हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताओ। कितने पारे का हुआ?
5-5 बार का जैसे मैंने मुसाबका हुआ 1 से 5 महीना भर उसका दौर निकाला, फिर उसके बाद बैठक सुनाया, फिर मुसाबका फिर दिया, फिर उसके अगला 5 बार ऐसे ऐसे करते करते बढ़ता गया। वहां पे देखे कि कोई 2 साल कोई 3 साल दौर किया तभी तरावी पढ़ाने के लायक नहीं रहा। शुरू मतलब तरावी पढ़ाने जाता था तो गलत तो यहाँ अभी जो हाफिज हुए तो मतलब आसानी के साथ हो गया। कितना कितना सबक सुनाते थे? वही 3-4 ऐसे सुनाते थे। 4 सबक सुनाते थे। जी। अच्छा, तो घर वाले यहाँ पर आए नहीं क्या? अबू अम्मी सब? तो मैं दोनों बाहर थे, मजबूरी से नहीं आ पाए। अच्छा, सब जलसे में आएंगे? जी, जलसे में आएंगे। जलसे में आएंगे। अच्छा, तो यहाँ का निजाम बेहतर लगा यहाँ? जी, वहां से अच्छा यहाँ का निजाम बेहतर लगा था। क्या बैठे हुए सुन लेता था 5-5 बारह करके, महीना महीना ऐसे हो जाता था। अच्छा, ठीक है, बहुत बेहतर है। और ये है मोहम्मद चांद। तो ये कितना के सबक सुनाते थे? 2-3 सफर सुनाते थे, 8 सफर सुनाते थे। अच्छा, और आमुख्ता? आधा बार सुनाते थे मुख्ता। अच्छा, कितना एक बजट में अभी कितना दौर हुआ है? मतलब 5 बार 10 बार कितना तक हो गया? 9 बार तक हो गया अभी। और अभी चल रहा है? अभी और चल रहा है, इस बार तक 15 तक करना है। अच्छा अच्छा। तो हाफिज हो गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। जी। किन किन को ले जाना है जन्नत में अपने साथ? कौन कौन को ले जाना है? दादा को ले जाना है कि नहीं ले जाना है? इंशाल्लाह दादी को भी ले जाएंगे। दादी को भी? जी। अच्छा, अबू अम्मी को? जी। दादा को सबसे पहले ले जाना है? हाँ जी। इंशाल्लाह। चलो, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर है इन लोगों के उस्ताद हैं। तो अभी उस्ताद हैं, एक है कारी मोहम्मद उसामा साहब जो पढ़ाए हैं यहाँ। इनके दर्जे में भी एक बच्चा हाफिज बना है। थोड़ा सा आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बच्चा है अमानुल्लाह, इसके वालिद साहब माशाअल्लाह नाराज रहते थे उनको देखकर कि बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। उनके नाज़ो नखरा को देखते हुए उनका भी दिल एकदम उदास रहता था बच्चों का। उसी एतबार से हमने उसको ढालने की कोशिश की और मोहब्बत प्यार दिया। उसी एतबार से मार सख्ती ये सब कम हुई। तो इस तरह करके हमने उस बच्चों को पढ़ाया तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया और सबक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उन्होंने। जिस तरह प्यार मोहब्बत से उसको समझा बुझा के जो पढ़ाया, जहां सख्ती करते थे तो फिर वो कुछ बोलता ही नहीं था। इस तरह करके कभी थोड़ी सी सख्ती और मोहब्बत उसको ज्यादा देते थे। इस तरह उसके नाज़ो नखरा को हम भी बर्दाश्त करते हुए इस तरह उसको हमने पढ़ाया। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने सबक सुनाया। 3 सफ़ा 4 सफ़ा सिर्फ बेगर नागा, कभी नागा नहीं किया उन्होंने। बड़ा अच्छा, ये नहीं कि 1-2 मरतबा गलती हो जाए तो फिर उसके बाद बता दिया तो चले गए, ऐसा भी नहीं होता था। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में। हमको लग रहा है मेरे यहाँ पर ये तो उसको ये साल था, इससे पहले दूसरे दर्जे में था, इसी मदरसे में 11 पारा हिफ्ज किया हुआ था। समझिए 18-19 पारा मेरे यहाँ पे हिफ्ज किया इस साल में 18-19 जी सर। शुरू से लेके जब से मेरे यहाँ पर आया मेरे दर्जे में, वब से समझिए 3 सफ़ा करते हुए इस तरह सुनाते हुए आया। तेज पढ़ा है? एक साल बहुत 20 पारे पढ़ा। आमुख्ता की भी माशाल्लाह पाबंदी की। और जैसा मालूम है आपको, महीने महीने मुसाबका होता रहा, उसमें ये बच्चे भी तैयारी करते रहे, मुसाबका में हिस्सा लेते रहे, उसमें भी माशाल्लाह सारे सवालों का जवाब देते आए। इस तरह करके इस तरह पढ़ाया। और यही है अंदर में अच्छा खींचा 5-6 महीना के अंदर में। हमको भी उम्मीद नहीं था कि साल हाफिज हो पाए, हमको भी उम्मीद नहीं था कि इस साल वो मुकम्मल कर ले, लेकिन 5-6 महीना के अंदर में बहुत खींचा, इसमें बहुत तेज खींचा है जी। इनके मामू आए थे मुमताज साहब रहमतुल्लाह साहब, उनके मामू को खुशखबरी दी कि बेटा हाफिज बनने वाला, आपका भांजा हाफिज बनने वाला है। तो उनके मामू चौंक गए कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एकदम जोर से जल्दबाजी में आए हमारे सामने, कहा कैसे हाफिज हो सकता है, हमको यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने उनको समझाया, सदी तफसील से बातें की, तो उनका कि नहीं आप कह रहे हैं तो फिर मानते हो। उनके कि देख लीजिए, सुन लीजिए आप। माशाल्लाह अभी है 1 से लेके 15 तक का मुसाबका ये बच्चा किया था, हिस्सा लिया था, वो सब माशाल्लाह याद है। अभी 15 से लेकर 30 तक
15 से फिर हम दौर इसका शुरू करवाए हैं। तो 15 से होते होते 22 तक आया है। 22 से 8 पारा बाकी है। माशाल्लाह वो भी समझे कि अब कल से एक एक पारा करके उसको इंशाल्लाह हो जाएगा, तो दौर मुकम्मल हो जाएगा। हिफ्ज भी किया इतना ज्यादा और याद भी रहा, याद भी था। मुकम्मल कुरान तकरीबन याद। यही है मदरसा गुफरानिया की मेहनत, यही है। और ये वालिद हैं अमानुल्लाह के, थोड़ा बताइए 2-4 बातें। सलामुल कौलन मिर रब्बिर रहीम। हजरत मुफ्ती साहब हसनुर रहमान, हजरत कारी इरशादुर रहमान, उस्ताद मोहतरम कारी उसामा साहब और दीगर असातिज़ा किराम। देखिए, मेरा ताल्लुक इस बस्ती से अजब इत्तेफाक रहा कि बचपने से रहा, लेकिन जब यहाँ अक्सर आने लगा तो देखा कि ये इदारा ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं रहा। अगरचे देखने में एक छोटी शक्ल है, लेकिन मियारी और इस्तेदादी तालीम यहाँ दी जा रही है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि मुझे अपने राब्ते और पहचान के एतबार से हिंदुस्तान के अक्सर या किसी खित्ते में मेरा बच्चा बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ पढ़ सकता था। लेकिन मैंने अपने बेटा हाफिज अमानुल्लाह से मशवरा किया कि बेटा तुम्हारा दिल जहाँ लगे उसी जगह का तुम जो है ना इंतखाब करो। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अमानुल्लाह ने इसी जगह का इंतखाब किया। इसका मतलब यह भी नहीं था कि मुझे ननिहाल जाना है या ननिहाल करीब में है। वो आज भी कहता है कि ननिहाल से मुझे उतना ताल्लुक नहीं है, हमको इदारे से ताल्लुक है। बहरहाल जमाने के एतबार से, हालात के एतबार से, जब ये 3 साल इस इदारे में इन्होंने पढ़ाई की, जिसमें 1 साल में 6 महीना तो इनके नाज़ो नखरे में लग गए और 6 महीना में थोड़ी सी, चूंकि स्कूल से पढ़ के आया था तो कुरान की मखारिज की रियायत, तजवीद, मुआनी क़ायदा, इस सब की कमी थी और इदारे वाले की जिम्मेदारी होती है कि इसकी शुरू से तस्हीह कराए। अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी इरशादुर रहमान साहब ने शुरू में इसकी नोशोनुमा की और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब्बा थोड़ी सी तंगी मालूम होती है, छोटा इदारा है, किसी और इदारे में मेरा दाखिला हो जाता। मैंने दरभंगा मधुबनी के अक्सर इदारे का सैर करा है। क्या बेटा तुम्हारा दिल जहाँ लगे वही तुम पढ़ो। कई जगह जाते जाते बेनी बाग, जामिया कासमिया, तो वहां मैंने कहा कि नहीं अब्बा यहाँ पढ़ेंगे, हमने दाखिला करा दिया। लेकिन फिर भी वहां का निजाम अपने एतबार से बेहतर था, लेकिन इनके दिमाग के एतबार से सही नहीं साबित हुआ, जो कुछ ही दिनों में वहां से वापस आ गया। और अजब इत्तेफाक रहा कि इनके जो पुराने उस्ताद थे, जिनका नाम था कारी अजहर साहब, जो पूर्णिया के थे, वो इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि वो भी फोन करते थे कि इस बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए। फिर अजब इत्तेफाक रहा, कहा जा सकता है कुरान करीम की आयत को पढ़कर इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, यह अजीब बात हुई कि जब ये यहाँ आए तो उनकी रोजी रोटी यहाँ से खत्म हो गई, कहीं अल्लाह पाक ने इससे बेहतर इंतजाम कर दिया। यह अजीब बात हुई है ना। कुरान करीम ने भी कह दिया इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब। बहरहाल जब फिर आया क़ारी इरशादुर रहमान साहब, जिम्मेदार है, वो तो हम पे भी बहुत गुस्साए होंगे, लेकिन हमारे बिरादर मोहतरम भी है, कितना गुस्साएंगे। हमने भी कहा कि नहीं पहले बच्चा को रखिए आप। बहरहाल फिर आप सबकी शफकत मोहब्बत रही और क़ारी उसामा साहब जैसे हमें मेहनती उस्ताद का दर्स मिला। जब मेहनत होती है तो यकीनन नफ्सियात में ये बात शामिल हो जाती है कि मेहनत से भागे, चाहे जोन सा आदमी हो, ये फितरत में शामिल होती है। ये क्या है, इसको आगे क्या हाँ। बताना है, इसके बाद तो कहाँ तक तालीम देना है? इन्होंने कहा कि कारी साहब का दर्स हमें कर दीजिए, लेकिन कारी इरशादुर रहमान से मशवरा करते करते हम लोग यहाँ तक लाए और कारी साहब से मैंने कहा कि ये जहन मोहब्बत का परवरदा है, मोहब्बत दीजिए, इंशाल्लाह आगे जाएगा। बहरहाल हमारे जानकारी के मुताबिक 2 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। हमने जिन जिन लोगों को जानकारी दिया सब वो ताज्जुब किया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये सही करेगा। बहरहाल है आप लोगों की मेहनत रंग लाई और खुशी की इंतहा इससे बेहतर क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी नेमत और दौलत और अमानत हम लोगों के सीने में अता किया। आगे जो है बिल्कुल इसको
ہے نہیں مکمل عالم اور فاضل بنانا ہے, دین کا دائی بنانا ہے, دین کی شیدائی بنانا ہے, اور اس سب کے لیے آپ سب سے دعا کے محتاج ہیں, دعا کے طالب ہیں کہ آپ سب کی دعا لگ جائے تاکہ یہ بہتر عالم بن کر کے دین کی شیدائی اور دین کا وفادار ہو جائے. خدا حافظ. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, جو مقاصد ہے, جو خواب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے. اب یہ قاری سعد الرحمان صاحب ہیں جو سارا نظام دیکھتے ہیں, بتائیے ان بچوں کے بارے میں کچھ, کیا آپ نے دیکھا, کیسے علم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بچے سب تو بہت محنت کیے. یہ لوگ تو یہاں ہی نورانی قادشی سے شروع کیے تھے. جو حافظ رحمۃ اللہ صاحب جو پورا واقعہ سنائی ہے وہی بات ہم لوگ بھی دہرانے کے لیے, مگر وقت کم ہے. یہ امان اللہ ہے, ابو ریحان ہے, چاند ہے. ماشاءاللہ یہ تو گاؤں کے بچے ہیں. اس کے ابو بہت پریشان ہوتے تھے, بار بار فون کرتے تھے کہ ہمارے بچہ کس طریقے سے حافظ بنے, اس سال ہو پائے گا نہیں, مگر ہم صبر دلائے اور کہیں گے نہیں انشاءاللہ وہ حافظ بن جائے گا. اور امان اللہ کے بارے میں بھی حافظ رحمۃ اللہ صاحب بار بار آتے تھے, مشورہ ہوتا تھا, اور کئی مرتبہ مشورہ بھی ہوا کہ ان کو کسی اور جگہ یا کسی درجے میں کیا جائے, مگر ہم ان کو مشورہ دیتے رہے, نہیں ہمت سے کام لیجیے, بچوں کو بھی سمجھائیے, اور کہتے رہے یہ بھی کہ آپ بھی سمجھائیے. ماشاءاللہ بات سمجھتا رہا, بچہ بھی بہت صحیح رہا, اور اس محنت پر وہ اترا, اور یہاں تک یہ بچے مقصد منظور تو پہنچ گیا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سارے بچوں کو کامیاب بنائے اور آگے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے کہ بچوں کی محنت کے ساتھ والدین, رشتہ دار, سب کی محنت شامل ہوتی ہے, سب کا صبر ہوتا ہے, قوت برداشت ہو, تحمل ہو, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, دعا ہو, تب جا کر کے یہ منزل آسان ہوتی ہے, منزل تک پہنچتا ہے. بہت سارے ہیں خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ مشقت برداشت نہیں کر پاتے ہیں, صبر نہیں کر پاتے ہیں. یہ سب اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنا بڑا کام ہے. قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک اتنے سارے الفاظ کو سینے میں بسانا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس لیے سب لوگوں کے انتظار, تحمل, برداشت, محنت, کوشش سے یہ کام آسان ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قبول فرمائے اور اپنے بارگاہ میں سب لوگوں کی محنت, کوشش, بچوں کی حفظ کو سب لوگوں کے لیے ذریعہ آخرت بنائے. اور اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. والسلام علیکم.